Okay. Hi everyone. Welcome to another session. So basically in this session we are going to learn how to set up jQuery with our web application and how to use jQuery in order to do some interaction with our HTML page or in order to manipulate your DOM with the help of jQuery. Okay. So first of all, we are having one sample application. In that sample application, you can see we have one index.html page, we have one site.css file, style.css file, and site.js. And we have just added these two files as a external file reference into our web page. Not all, only jQuery file we require, and that we have already added JavaScript file. Now, in order to enable the jQuery with our application, first of all, you should know how to add the jQuery, how to install the jQuery with our application. So we have to first of all install that, enable that with our application, and then only you can basically uh, do that, start using the jQuery. So you can see I go here, open the new tab, search here jQuery CDN. Okay, this one. Go to the first link and then copy this one, minified. Okay, there are jQuery 3.0, copy minified version. You will get one script tag, copy that tag, go to your web page, add that tag before your external JavaScript file because this is the priority. I mean, you should have the jQuery reference first, then only you can use that in the next file. So this is the priority, import priority. So you have to import jQuery, then import your external JavaScript file. So like that. Now you can see you have just installed the jQuery with our application, and there is one JS file which we are going to use in order to write our JavaScript code or jQuery code. So jQuery is basically one of the framework provided by JavaScript. In that you can do all the things which you can do with the JavaScript, but with very less line of code. बहुत कम लाइन में आपको बहुत ज्यादा आउटपुट आ जाता है. So that's why JavaScript ने ही खुद से रिकमेंड किया हुआ है भाई अगर if you want to do some DOM related operations go with the jQuery. क्योंकि आप अगर 10 लाइन लिखोगे those line we have already written in the jQuery library. You just have to use them. So why you are repeating such thing again and again? So to make developers life easier, they have provided us one framework that is called a jQuery, and you should only know how to use the jQuery. It is same like our Bootstrap and CSS. CSS is something which you can write your own, but अगर Bootstrap use करोगे इससे आपका फायदा क्या होगा कि Bootstrap में already predefined classes है. You don't have to rewrite the same thing again and again every time. क्लास का नाम यूज करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको चाहिए वैसे हो जाएगा. तो दैट इज द मैजिक ऑफ बूटस्ट्रैप. सेम थिंग जावास्क्रिप्ट और jQuery का है कि भाई डोंट राइट 10 लाइंस अगेन एंड अगेन. गो विद द jQuery, यूज वन लाइन सेंटेंस, यू आर गुड टू गो. Like that. Okay, so use the jQuery, and this is how you can install the jQuery with your application. I will simultaneously open the jQuery syllabus as well. So we should not miss anything. That's why. Okay, we just saw what is jQuery and why it is so much powerful. We just discuss about that. What we can do all the things with the jQuery. Same thing. Whatever things you can do with the JavaScript, all these things you can do with the jQuery. So you can easily select the elements for doing some manipulation. Select elements means let's say आपका एक वेब पेज है और वेब पेज में कुछ टेक्स्ट बॉक्स है. आपको उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू रन टाइम डालनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करके लाना पड़ेगा. Then you can add some value into those text box with the help of jQuery. Okay, so that you can do. Next is you can create the effect like show and hide, sliding, all these things. So animation effect आप बहुत easily डाल सकते हो. अगर jQuery आप use कर रहे हो, you can add the animation effect very less efforts. जैसे कि हाइड नाम का फंक्शन है, शो नाम का फंक्शन है, एनिमेट नाम का फंक्शन है, ये सब चीजें ऑलरेडी है. सो विद द हेल्प ऑफ दोस यू कैन ऐड द एनिमेशन. यू कैन ऑल्सो क्रिएट द कॉम्प्लेक्स सीएसएस एनिमेशन विथ प्योर लाइन ऑफ कोड. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक एनिमेट नाम का फंक्शन है. वो फंक्शन में आप 2-3 लाइन लिखोगे, कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करोगे, ऑटोमेटिक एनिमेशन बन जाए. और वही एनिमेशन आपको सीएसएस में करना है तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे. सो दैट इज ऑल थिंग.
then we can easily manipulate the DOM elements and their attributes. DOM element यानी क्या? DOM का full form है document object model. Okay, so we can see let's say this is the web page, right? आपका कुछ भी एक वेब पेज है, ये वेब पेज है. एक वेब पेज में क्या है? एक सर्च बॉक्स है, यहाँ पे होम बॉक्स है, यहाँ पे पेस्ट बटन है, यहाँ पे फाइल बटन है, यहाँ पे इतने सारे मेनू आइटम्स है. So all these elements will be available in the DOM. DOM मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. एक डॉक्यूमेंट नाम का आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके अंदर ये सारी जो बटन है ना, ये एज अ ऑब्जेक्ट अवेलेबल रहेगी. सो एज अ डेवलपर we know what is object. Object is something in a memory which we can interact with. If we change the value of it, it will automatically reflect in the web page. So ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में मिल जाता है. जैसे हमने कल एक ऑब्जेक्ट देखा था कि वो स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का एड्रेस क्या है. ओके, वैसे ही आपको सीधा मिल जाएगा कि ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा सर्च वाला. और टेक्स्ट बॉक्स को में अगर आपने कुछ वैल्यू चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में, वो वैल्यू आपको यूआई में भी दिखने लग जाएगी. ओके, ये ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू मैंने डाल दिया, यूआई में दैट विल ऑटोमेटिकली. दैट इज योर डॉम. यू कैन मैनिपुलेट दैट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ jQuery. And even Angular is more better than jQuery, so we are going in that direction. Okay, so JavaScript is the base of Angular and jQuery. JavaScript मतलब अगर आपको core knowledge है, then you can do anything. You don't have to be depend upon jQuery and okay. So in the jQuery, we can do all the things which we can do with the JavaScript, and we will just the main benefit of using jQuery is you will just have to write the less line of code, and then with the help of those, you can easily produce the same output which we can do with the help of JavaScript. Okay, so let's go ahead and install the jQuery as we just saw. In order to install the jQuery, you can go to the jQuery release.jQuery.com website. Here you have to choose the latest version, that is 3.7.1, and click on the minified. Okay, as soon as you click here, you will see one script tag. Copy that from here and go to your HTML page and paste it here. So this is how you can install the jQuery with your application. Now, in order to see whether you have successfully installed it or not, what you can do, go to the site.js, enter dollar document, okay, document dot ready function. So without this function, we will not write the jQuery. Why? Because whatever I want to write, that should be after loading the jQuery CDN file. Okay, so this CDN file will take some time and some micro milliseconds in order to load the file in our web page. And this file will only get loaded when your web page is loaded, right? Because this is available in head section. अगर आपका वेब पेज लोड हो गया तभी जाके हेड सेक्शन को कॉल जाएगा, उसके अंदर ये फाइल लोड होगी. अगर ये फाइल लोड होगी तभी जाके आपका jQuery का कोड चलने वाला है. So whatever jQuery code you are going to write, that should be under this function only, document.ready. इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई मेरा ये कोड यहाँ पे जो मैं कोड लिखूंगा, कोड टू एग्जीक्यूट. ओके, एग्जीक्यूट, इसका मीनिंग क्या है? whatever code I will execute here on line number 2, that will only execute when my page is loaded. Document.ready का मतलब ही यही होता है कि whether your page is loaded, page load is completed or not. If it is completed, it is loaded, all the elements from your page are now completely loaded fine, then it will give a call to the line number 2. तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट डाल देता हूँ, अलर्ट hello world from jQuery. ओके, hello from jQuery ऐसा कर दूंगा सिंपल. ओके, अगर आपको ये मैसेज आ गया, इसका मतलब यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल द jQuery विथ योर एप्लीकेशन. अगर आपको ये मैसेज नहीं आया, इसका मतलब देयर इज सम इशू. Okay, we have to look into that. So how to run the page? Go here, right click, go to your explorer, double click on this file. Wait, आया मैसेज? नहीं आया, इसका मतलब देयर इज सम इशू. गो इंस्पेक्ट दैट, गो टू द कंसोल. हियर आपको दिख जाएगा डॉक्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड. मेरा स्पेलिंग ही गलत है. ओके, ये जो डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग है ये गलत है. इसका मतलब डॉलर इज नॉट डिफाइंड उसने नहीं बोला,
डॉलर यानी जेक्वेरी। ओके, डॉलर का मीनिंग होता है जेक्वेरी। डॉलर जहाँ पे भी मैं डॉलर लिखूंगा ना, वहाँ पे वो अपने कंपाइलर को, ब्राउजर को समझता है कि भाई इसके आगे जो भी कोड किया है ना वो जेक्वेरी ही है। ओके, सो वो इस लाइब्रेरी में जाके उसका पता करेगा कि जब मैंने ये कोड लिखा है जेक्वेरी का, तो इसके अंदर उसका कुछ रेफरेंस अवेलेबल है क्या। इफ इट इज देयर देन इट विल accordingly execute the further code from the jQuery library. ओके, यहाँ पे अभी ये डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग गलत है, लेट मी करेक्ट दैट। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। नाउ लेट मी जस्ट चेक, गो हियर, रिफ्रेश इट। इफ यू आर seeing hello from jQuery, you are good. Okay, you have successfully installed the jQuery with our application. Great. Okay, now सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको jQuery के साथ इंटरैक्ट करना है, jQuery को प्रॉपर इनपुट्स देने हैं, देन you should know about the selectors. अभी selectors क्या है? So in CSS we learn some selectors, right? So there are some selectors we learn like ID selector, class selector, attribute selector. Okay? Then we saw uh, grandchild selector. Then we saw universal selector. Okay. Then we also saw siblings. Okay. We saw then ID selector, class selector, element selector. Okay, it is also most common. So these many selectors we already saw. So this selector will help you to choose the element from the HTML page and then apply some JavaScript code on it. So that's why you will require the same set of selectors which you were using in the CSS file. Okay, in the CSS file, in order to apply the CSS to particular element from the HTML page, उसके लिए हमने बहुत सारे सिलेक्टर्स देखे थे, राइट। सो वो सेम सिलेक्टर्स आपको jQuery के लिए भी लगने वाले हैं। सो विदाउट सिलेक्टर यू कैन नॉट सिलेक्ट द एलिमेंट फ्रॉम द पेज फॉर इंटरेक्ट डूइंग सम इंटरेक्शंस ऑन इट। ओके, अभी आप छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक बटन है, बटन का नाम है, एक बटन है, उसको मैं बोल रहा हूँ क्लिक में। ओके, नाउ अगर ये बटन पे मैंने क्लिक किया, विद द हेल्प ऑफ jQuery मुझे क्या करना है, एक मैसेज दिखाना है, यू क्लिक में, ऐसा मैसेज दिखाना है। ओके, कब दिखाना है, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन। अभी ऑब्वियसली अगर जावास्क्रिप्ट रहता है तो हमने क्या देखा था, यहाँ पे मैं क्लास यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक शो मैसेज, ऐसा हमने कुछ देखा था पहले जावास्क्रिप्ट में। लेकिन आई डोंट वांट टू डू एनी चेंजेस इन द एचटीएमएल पेज। without doing anything in the HTML page, I want to select this element in JavaScript and there I want to do some operation. तो jQuery का एक सिंपल एक ही सिंटेक्स है, वो अगर आपको समझ में आ गया ना, यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ jQuery कोड। क्या सिंटेक्स है यहाँ पे, मैं सिंटेक्स है, सिंटेक्स ऐसा है, डॉलर सिलेक्टर डॉट इवेंट फंक्शन कोलन, बस ये सिंटेक्स आपको पता करना है। ये जिसको पता है ना, लाइन नंबर 14, ही कैन इजीली वर्क विद jQuery। कुछ नहीं, उसके लिए कुछ भी हार्ड नहीं फिर jQuery में। क्यों, अभी मैं इसके आगे जो भी jQuery का कोड लिखूंगा ना, ये सिंटेक्स उसमें आने ही वाला है। विदाउट दिस वी डू नॉट हैव द jQuery। अभी देखो मुझे क्या करना था, इस बटन पे अगर मैंने क्लिक किया, आई वांट टू शो यू क्लिक मी मैसेज, राइट। so let's refer this, copy paste, I want to refer this, right? So how to, give me a minute. ओके, सो अगर आपने ये सिंटेक्स देखा, अभी मैंने jQuery का सिंटेक्स यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया, राइट। अभी अगर आपने नोटिस किया, मैंने ये ऊपर का भी सिंटेक्स इसके जैसा ही लग रहा है मेरे को। क्यों, सिलेक्टर, सिलेक्टर यानी भाई किसके ऊपर ऑपरेशन करना है, वी वांटेड टू डू सम ऑपरेशंस ऑन द बटन, राइट, क्लिक मी बटन। सिलेक्टर का मतलब ये है कि भाई HTML पेज में कौन से एलिमेंट के ऊपर आपको इवेंट लगाना है।
I want to apply the event on button tag. This is my selector. कौन सा selector है? ये है element selector because I have directly added the HTML tag name as a selector. It means this is your element selector. Got it? अगर मैंने यहाँ पे क्लास डाला रहता, जैसे कि मेरे बटन का क्लास है BTN क्लिक मी, ऐसा कुछ नाम है, ओके। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने डॉट करके डाल दिया, ये हो गया क्लास सिलेक्टर, राइट। क्लास सिलेक्टर मतलब आप पीरियड यूज कर सकते हो, डॉट यूज कर सकते हो। सो these are the same selectors which we were using in CSS. We are already learned those. So those selectors you can use in a jQuery to select the element from the web page. And once you select that element, next step is event, कि भाई उस एलिमेंट पे क्या काम करना है। आई वॉन्ट टू डू द क्लिक इवेंट, तो मैं लिखूंगा क्लिक। यहाँ पे जो नाम था ना ऑन क्लिक ऐसा कुछ, वो नहीं लगाना है, इसको बोलना है क्लिक। jQuery में क्लिक रहे। सो जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करेगा ना, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। दिस इज योर इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन हमने देखा है जावास्क्रिप्ट में क्या रहता है, जिसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इनलाइन फंक्शन मीन्स डिक्लेयर रन टाइम, एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। मतलब किसी ने इसको क्लिक किया तो ये जो फंक्शन था इसके अंदर लिखा हुआ, इसको कॉल चला जाएगा। और इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे अलर्ट यू क्लिक मी, ऐसा कुछ। मी मतलब बटन, ओके। ऐसा सिंपल। कोड पढ़ने में भी बहुत इजी है। अगर किसी ने इस बटन को क्लिक किया तो ये लाइन एग्जीक्यूट करो, बस इतना ही jQuery है। अभी मैं जो कुछ भी लिखूंगा ना, इसके बाहर वाला नहीं है jQuery में। ओके, इस सिलेक्टर को क्लिक किया, इसको कॉल। अभी आप क्या कर सकते हो, आउटपुट देख सकते हो। एक बटन है क्लिक मी नाम का। देखो लास्ट टाइम मैंने जब रिफ्रेश किया था, यहाँ पे हेलो वर्ड आ गया था, हेलो फ्रॉम jQuery। क्यों आया था? क्योंकि वो इवेंट क्या था, डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद अलर्ट दिखा दो। लेकिन अभी कंडीशन क्या है भाई, डॉक्यूमेंट रेडी है क्या? यस। बटन पे क्लिक किया क्या? यस। फिर ये दिखाना है। फिर से डॉक्यूमेंट रेडी है क्या? यस। बटन पर क्लिक किया क्या? नहीं। नहीं दिखाना है। मैंने बस डॉक्यूमेंट रेडी करके रखा है, बटन पर क्लिक ही नहीं किया, फिर इट विल नॉट शो एनीथिंग, राइट। आई वॉन्ट टू शो दैट नाउ, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन इट। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा, ये बोलेगा कि भाई यस यू क्लिक मी। क्यों? क्योंकि वी हैव जस्ट एडेड दैट कोड इनसाइड द रिस्पेक्टिव फंक्शन ऑफ द क्लिक इवेंट। गॉट इट? बहुत इजी है, आप भी कर सकते हो। लेकिन आपने नोटिस किया रहेगा कि बहुत सारी वेबसाइट में ऐसा रहता है। क्या रहता है कि अगर आपने किसी बटन पर क्लिक किया है तो कुछ तो भी ऑपरेशन होता है, ओके। वैलिडेशंस होते हैं, जैसे कि आपने एक फॉर्म भर दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछ रहा है, एंड देन आपने वो एम्प्टी छोड़ दिया, एंड देन यू आर ट्राइंग टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन। फिर आपको एक वैलिडेशन मैसेज दे देता है, प्लीज इंटर फर्स्ट नेम, प्लीज इंटर लास्ट नेम। ये कैसे होता है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द jQuery, क्योंकि jQuery के यहाँ पे एक ऐसा इवेंट लगाया होता है। किसी ने बटन पे क्लिक किया एंड अगर फर्स्ट नेम टेक बॉक्स में कुछ भी नहीं है, शो द मैसेज प्लीज इंटर समथिंग। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि सर हाउ वी कैन चेक वेदर वी हैव इंटर समथिंग इन द फर्स्ट नेम चेक बॉक्स और नॉट, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट। तो उसके लिए अपन और एक थोड़ा छोटा सा POC करते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसको मैं क्लास देता हूँ txt फर्स्ट नेम। ओके, वी डिड वन असाइनमेंट यस्टरडे, तो उसको थोड़ा रिलेट करोगे आप। क्या है, क्लास भी डाल सकते हो, नेम भी डाल सकते हो। ओके, दिस टाइम लेट्स टेक द नेम। नेम क्यों लेना होता है? क्योंकि इसके अंदर आप जो भी नेम रखोगे ना, ये नेम आपकी सी शार्प के प्रॉपर्टी को मैच करना चाहिए, तभी जाके इसमें जो वैल्यू आप पुट करोगे, ये वैल्यू आपकी सी शार्प के प्रॉपर्टी में बराबर बाइंड होगी। दैट वी सॉ इन द प्रीवियस सेशन, ओके। we'll see that again, don't worry. But here our focus is to how to select this input box in a jQuery so that I can read the value from the text box, whether you have entered in the text box something or not, how to do that. So इसके लिए देखो, एक
इनपुट टेक्स्ट लिया, नेम डाल दिया मैंने txt फर्स्ट नेम, दैट्स इट। इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये जो वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट रहता है ना टेक्स्ट बॉक्स का, वैल्यू नाम का, इसमें कुछ भी नहीं। तो अगर ऐसा है देन यहाँ पे एक ईपीएस ब्लॉक तो हमने देखा है jQuery जावास्क्रिप्ट में। मैं दोनों सिलेबस सामने ही रखा, so that way you will immediately relate to that. Okay. ओके, यहाँ पे देखो इफ एल्स स्टेटमेंट हमने कहीं पे देखे है ना, ये वाला इफ एल्स। इफ अगर ऐसा है तो एग्जीक्यूट करो, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं एग्जीक्यूट करो, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करो अगर रहेगा तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू यूज नाउ। ओके, ये रियल टाइम कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे डिसाइड करना है कि भाई इसको यूज करना है नहीं करना है, इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मेरे पास एक टिक बॉक्स है, इसका नाम है फर्स्ट नेम। ओके, फर्स्ट नेम में सम मैसेज टीएक्सटी मैसेज, मेरे को एक मैसेज पॉपअप में दिखाना है। सो आई हैव वन टेक्स्ट बॉक्स, इट हैज सम मैसेज, सो प्लेस होल्डर डाल देंगे, प्लीज इंटर सम मैसेज। ओके, रिफ्रेश, बड़ा हो गया, छोटा करेंगे, एंटर अ मैसेज। ओके, हम बोल रहे हैं कि भाई कुछ मैसेज डालो, वी विल सी इफ यू इंटर सम मैसेज देन विल शो दैट मैसेज इन अ पॉपअप, यू एंटर दिस लाइक दैट। अगर आपने कुछ भी मैसेज नहीं डाला है देन वी हैव टू कंप्लेन, प्लीज इंटर समथिंग, वी हैव टू वैलिडेट दैट। नाउ इफ यू वांट टू डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to take this box from the DOM to the JavaScript, read the value from it. If it has something, then only you can read that value and show in the pop-up. If it doesn't have something, you can complain. So we will see how to select the value from the text box along with if else statement again. Go here. See, डॉक्यूमेंट अगर रेडी है, अगर बटन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू देखो, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, या फिर मैं इसका नाम देता हूँ मैसेज। मैसेज मुझे रीड करना है टेक्स्ट बॉक्स में से, विच टेक्स्ट बॉक्स में से मुझे लेना है, कौन से टेक्स्ट बॉक्स में से लेना है, आई वॉन्ट टू टेक इट फ्रॉम दिस बॉक्स। ओके, इस बॉक्स में मुझे ऐसा क्या सिलेक्टर मिलेगा कि जिसका मैं यूज करके इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सिलेक्टर देखो, अपने ये सारे सिलेक्टर जो है, इसमें आईडी है क्या, देखो पहले आईडी है क्या इसमें, नहीं है, सो वी कांट यूज आईडी सिलेक्ट। क्लास है क्या इसमें, देखो क्लास नहीं है, सो वी कांट यूज दैट। कुछ एट्रीब्यूट से हम उसका यूनिकनेस पता कर सकते हैं क्या, यस, txt message is one of the attribute of this box and this is unique। क्योंकि अगर दूसरा कोई बॉक्स रहेगा ना, उसमें उसका नेम और उसका नेम सेम नहीं हो सकता, नेम मोस्टली कॉमन यूनिक ही रहता है, नेम एंड आईडी। सो वी कैन यूज दिस। so how we can write the attribute selector, same like our css, हमने देखा है कैसे देखा है। पहले तो टैग का नाम डालना पड़ता है, इसका नाम है इनपुट, फिर उसके एट्रीब्यूट का नाम डालना पड़ता है, फिर उसको वैल्यू डालना पड़ता है, ये हो गया आपका एट्रीब्यूट सिलेक्ट। ओके, तो डॉलर, ये सिंटेक्स ध्यान में रखना है, मैंने बोला है इसके बाहर जे कोई है ही नहीं, इसको ही पकड़ के ये लिखना है। डॉलर लिख दिया था मैंने, लिख दिया यहाँ पे, फिर मैंने सिलेक्टर लिख दिया, यस दिस इज माय सिलेक्टर। नाउ एक फंक्शन है वैल करके, ओके, जेक्वेरी में एक वैल नाम का फंक्शन, तो ये फंक्शन दो काम करता है। अगर आपने इस फंक्शन को कुछ वैल्यू एज अ पैरामीटर भेजा, इट विल सेट दैट वैल्यू टू दिस एलिमेंट। अगर आपने इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं भेजा, इट विल गेट द वैल्यू फ्रॉम दिस एलिमेंट। सो गेट एंड सेट का काम एक ही फंक्शन करता है, इट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पैरामीटर एंड दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग की बेनिफिट यही होता है कि फंक्शन का नाम वही रहेगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीटर लिस्ट इट विल चेंज द बिहेवियर, दैट इज डायनामिक पॉलीमॉर, सॉरी, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म,
पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या, एक ही चीज हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. So here we are using val function for two different purposes. One is to get the value, one is to set the value. अभी अपने को क्या करने का है, get करने का है. So that's why we are not passing any parameter here. If you don't pass any parameter, it will get the value from the text box and store into the message variable. Now at the line number 4, we got the value. Whatever you enter into that text box, we have to validate that now. If message में कुछ नहीं है, मतलब वैल्यू एम्प्टी है, ऐसा हमने इक्वल टू ऑपरेटर देखा है. आई एम ओपनिंग द सिलेबस हियर. ओके, सी द ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके अंदर इक्वल टू ऑपरेटर. इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, इट विल बेसिकली कंपेयर द वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑपरेंड एंड राइट साइड ऑपरेंड. अगर दोनों के वैल्यू सेम हो गए, इसका मतलब इट विल गो इनसाइड द इफ ब्लॉक. इफ ब्लॉक का सिंटेक्स ही वही है. अगर ये कंडीशन ट्रू है, गो इनसाइड. ओके, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, अगर मैसेज के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब टेक बॉक्स के अंदर कुछ भी टाइप नहीं किया है, सो हम क्या करेंगे, इस टेक बॉक्स को रेड कर देंगे, इसका बॉर्डर रेड कर देंगे. बॉर्डर रेड करने के लिए कौन सा सीएसएस लगाएंगे, बॉर्डर, देखो ऐसे करेंगे, बॉर्डर नाम का एक सीएसएस रहता है, सॉलिड इन रेड, ऐसा कर सकते हैं अपन, राइट. दिस विल लर्न इन द सीएसएस. तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है बॉर्डर का, इसे हम ऐसे कर सकते हैं. उसके बाद उसके टेक्स्ट भी रेड करेंगे. टेक्स्ट रेड करने के लिए क्या करोगे फिर आप, कलर कोलन रेड, मतलब इसके अंदर जो भी कुछ टाइप करोगे वो रेड में दिखेगा. ओके, प्लेस होल्डर का वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, सो डोंट डू दैट. चलो लिव इट, इसको रेड कर दो. और यहाँ पे एक मैसेज दिखा देंगे अपन लेबल उसके नीचे, प्लीज इंटर अ मैसेज. ओके, ऐसा एक अपने को मैसेज दिखा, इसके नीचे दिखाना है, राइट. क्लिक मी के बाद में, तो हम जाएंगे कोड में भाई. पहले वो मैसेज है ना, क्लिक मी के बाद में, मतलब इसके बाद में मुझे यहाँ पे एक स्पैन या फिर लेबल ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं मैसेज डालता हूँ, प्लीज इंटर मैसेज. ओके, इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे आ गया. चलो, अपने पास अभी बूटस्ट्रैप है नहीं, नहीं तो अपन उसको बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मेट करते हैं, लेकिन फॉर टाइम बेइंग जस्ट डू लाइक दिस सम हैक, राइट. सो ये बहुत बड़ा हो गया, इसको छोटा करना पड़ेगा. तो इसको पहले क्लास दे देते, सी एस में क्लास txt error. ओके, सॉरी नॉट txt, इट इज lbl, राइट, लेबल. तो जो टैग का नेम रहता है ना, वो थोड़ा प्रीफिक्स लगाया करो, उससे पता चलता है कि विच काइंड ऑफ एलिमेंट इज दिस, वेदर इट इज टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, लेबल, स्पैन, डिवीजन, ऑल दिस. गो टू द css, मेंशन दैट क्लास नेम, उसका कलर कर देना है आपको रेड. ओके, उसका फॉन्ट साइज थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ, 12 कर रहा हूँ. ओके, ऐसे कुछ दिखेगा वो, इस काइंड ऑफ. अभी आप बोलोगे कि लिखा तो है, वाई इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, बिकॉज वो फाइल का रेफरेंस हमें यहाँ पे देना पड़ेगा. लिंक इक्वल टू href, यहाँ पे लिखना है, क्या है फोल्डर का नाम, css. ओके, css स्लैश स्टाइल डॉट cs, यहाँ पे लिखना है रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, एंड देन इसको एम्प्टी टैग है, तो ये आ गया रेड कलर. नाउ ये थोड़ा बड़ा करना है, या फिर ठीक है, फाइन. ओके, ये तभी दिखना चाहिए जब हमने इसमें कुछ नहीं डाला है और क्लिक कर रहे हैं. इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, हाइड होगा. अगर वो बाय डिफॉल्ट हाइड होगा, तो यहाँ पे हाइड करने के लिए अपने पास कौन सा CSS है, डिस्प्ले नन. ये बाय डिफॉल्ट अभी कुछ नहीं दिखेगा. नाउ विद द हेल्प ऑफ jQuery, हमें अभी आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कुछ इंटर किया था क्या. अगर किया था तो ठीक है, पॉपअप में दिखा दो. अगर नहीं किया, तो इसके अंदर पहले इसका बॉर्डर रेड करो और वो टेक्स्ट भी दिखाओ. ये काम हमें करना है jQuery से. नाउ वी आर इन अ सिचुएशन, ओके, वी हैव द सिनेरियो, हाउ टू हैंडल इट. यहाँ तक तो हमने कोड लिखा है jQuery से, इसके बाहर जाएंगे नहीं अपन. अगर मैं गया तो मुझे टोको, डोंट वरी, विल नॉट गो बियॉन्ड दिस, बिकॉज jQuery इसके बाहर है ही नहीं.
ओके, कहीं पे भी देखो आप। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, डॉलर से जो भी सेंटेंस चालू नहीं हो रहा है, समझ लो जावास्क्रिप्ट है। कंपेयर करो, देखो ये सेंटेंस जावास्क्रिप्ट चालू जेक्यू डॉलर से चालू हो रहा है क्या? नहीं, ये जावास्क्रिप्ट है। क्यों? मैसेज डिक्लेयर किया है मैंने, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन है ना जावास्क्रिप्ट में, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, ये वाला। रिलेट करो अपने सिलेबस से। ओके, आप बोलोगे कि ये यहाँ पे भी डॉलर नहीं है, ये भी जावास्क्रिप्ट है। देखो, यहाँ पे जाओ, यूपीएल शो ढूंढो, मिल जाएगा। जहाँ पे डॉलर नहीं है वो जावास्क्रिप्ट है, जहाँ पे जेक्वेरी डॉलर है वो जेक्वेरी है, और इसके बाहर वाला नहीं है। ऐसे ही रहेगा कुछ। ओके, यहाँ पे डॉलर है, देखो ये पूरा लाइन मैच कर लो इस, हो जाएगा। ओके। ओके, नाउ हमने देखा कि एक टिक बॉक्स में से मैसेज लाया, मैसेज अगर नल है तो मुझे क्या क्या चीजें करनी है, टू डू। देखो क्या क्या करनी है। मेक टेक्स्ट बॉक्स बॉर्डर रेड, ये अपना पहला आइटम। उसके बाद क्या करना है? शो एरर मैसेज, शो एरर लेबल। ओके, ये दिखाना है, ये दो चीजें करनी है। चलो फिर ये करते हैं, मेक टेक बॉक्स बॉर्डर रेड। टेक बॉक्स मतलब ये पूरा बॉक्स, इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको बॉर्डर रेड करना है। तो एक CSS करके फंक्शन है jQuery में, इसमें आप इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हो? CSS लिख सकते हो, ऐसा CSS लिख सकते हो। ये देखो, CSS नाम का फंक्शन है, राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज। उसके अंदर ये जो भी लिखते हो ना आप ऐसे, ये करली के अंदर, ये सीधा यहाँ पे लिख सकते हो jQuery पे। यू आर नाउ फ्री टू यूज CSS हियर बिकॉज ऑफ CSS फंक्शन। सिंपल। क्या लिखना है आपको? मुझे लिखना है बॉर्डर कोलन सॉलिड थिन रेड, ये ऐसा करो। कब करना है? जब मैंने बटन पे क्लिक किया, मैसेज में कुछ नहीं है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर रेड करो। सिंपल, आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस। ओके, अगेन। ओके, पहला आइटम तो हो गया मेरा। नेक्स्ट आइटम क्या है? शो एरर मैसेज लेबल। ओके, jQuery से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो डॉम से हम प्ले करने वाले हैं। डॉम में जा रहे हैं, ये मुझे उठाना है, ये एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो उसका क्लास क्या है? LBL एरर। ओके फाइन। सो आई विल डू द डॉट, बिकॉज मुझे क्लास एलिमेंट क्लास सिलेक्टर यूज करना है। तो डॉट शो नाम का फंक्शन है jQuery में, यू आर डन। इट विल विजिबल इन द यूआई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शो। यही अगर आपको जावास्क्रिप्ट से करना है तो बहुत काम करना पड़ेगा। शो नाम का फंक्शन क्या करता है? जहां जहां पे डिस्प्ले नाम लगाया है ना, उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देता है। इससे क्या हो जाता है? वो एलिमेंट सीधा शो विजिबल हो जाता है। दैट्स इट, वी आर डन विथ ऑल द टू डू आइटम्स। रिफ्रेश, गो हियर, रिफ्रेश। कुछ ने ऐड किया, बस क्लिक कर दिया, क्या हो गया? इसने टेक बॉक्स का बॉर्डर ऐड कर दिया, और इसने एक मैसेज भी दिखा दिया, प्लीज एंटर में। ओके, नाउ वी हैव टू हैंडल एल्स ब्लॉक ऑल्सो, राइट? अगर मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया, वेलकम टू चेक विल, अगर मैंने ऐसा कुछ डाल दिया और इस पर क्लिक किया, तो फिर भी ये बॉर्डर ही दिखा रहा है, फिर भी ये मैसेज ही दिखा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए उसने। उसने ये बॉर्डर को फिर से ब्लैक करना चाहिए, और ये मैसेज को हाइड करना चाहिए, और एक पॉपअप दिखाना चाहिए। जो मैंने इसमें लिखा था वो मुझे पॉपअप में दिखाना है। दिस इज माई टास्क। ओके, नाउ ये यहाँ तक तो ठीक था, ये हो गया। अगर मैसेज में कुछ नहीं है तो भाई ये चीज करो। अगर मैसेज में कुछ है, मतलब क्या? आई हैव इंटर्ड, यूजर हैज इंटर्ड समथिंग, तो मुझे टू डू आइटम लिखो। फिर से क्या क्या काम करना है? मुझे क्या करना है? पहले इसका बॉर्डर ब्लैक करना है। हो सकता है किसी ने रेड करके रखा हो, मतलब किसी ने बिना इंटर किए हुए क्लिक करके रखा हो, तो मुझे ऑब्वियसली उसको रेड करना, ब्लैक करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये फंक्शन में पूरा लिखूंगा यहाँ पे। फिर मैं इसको ब्लैक नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा इसको? बॉर्डर नन। नन तो नहीं कर सकते, बॉर्डर चाहिए अपने को एक्चुअली। इसको चलो ब्लैक ही कर देते। ब्लैक का हेक्साडेसिमल नंबर था ये वाला, हमने पढ़ा है, हैव द रिकॉर्डिंग्स। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये CSS लगा देगा, ब्लैक कलर की बॉर्डर लगा देगा। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? ये मैसेज मुझे हाइड करना है। सो पूरा उल्टा करना है। अपने पास हाइड नाम का फंक्शन भी है, इसको बोलो हाइड,
ये हो जाएगा डिस्प्ले नन वापस, टुडे आइटम्स खत्म. हाँ, वन मोर थिंग इज रिमेनिंग ना. आई वांट टू शो दैट मैसेज इन अ पॉपअप. तो मैं इसमें ऐसा स्ट्रिंग कॉन्कैटेनेशन करूंगा, जैसे कि यू हैव इंटर्ड ये वाला मैसेज. यहाँ पे मैं स्लैश एन देके, स्लैश एन नहीं चाहिए, आगे ही दिखना चाहिए. क्या दिखना चाहिए, इस मैसेज में ऑलरेडी मैंने रीड करके रखा है जो आपने एंटर किया था. सो दैट विल ऑटोमेटिकली विजिबल इन द यूआई लाइक दिस. कुछ नहीं लिखा, ये रेड हो गया. मैं लिखता हूँ फिर हाउ आर यू. फिर मैंने क्लिक कर दिया, क्या हो गया, यू हैव एंटर्ड हाउ आर यू. ओके, हो गया, ये ब्लैक हो गया वापिस, ये निकल गया सब कुछ. Got it? So this is how we can work with the jQuery in order to play with the DOM elements. DOM elements में फिर से बता रहा हूँ, जो भी HTML के पेज में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, आई एम कॉलिंग देम एज अ DOM एलिमेंट्स. अगर HTML के पेज में आपको किसी भी एलिमेंट के साथ कुछ भी ऑपरेशन करना है क्लाइंट साइड, go use the jQuery, understand this and understand this, you are good to go. Okay, so this is small uh, introduction about jQuery. Now we will go some points topic by topic. Okay, let me stop the recording.